بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کہانی شروع سے آخر تک سمجھ آ سکے۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ جب حسن سنار کا عشق بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ برابر اشعار پڑھا کرتا، اور چونکہ وہ محل میں اکیلا تھا اس کا دل ہرگز نہ بہلتا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اسے جنگل کی طرف سے گرد اٹھتی دکھائی دی۔ وہ نیچے آ کر چھپ گیا اور اسے یقین ہوا کہ محل والے آ گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر اتر کر محل کے آس پاس پھیل گیا اور ساتوں لڑکیاں اتر کر محل کے اندر آئیں اور اپنے ہتھیار اور جنگی لباس اتار ڈالے، لیکن چھوٹی لڑکی نے اپنی جنگی وردی نہ اتاری بلکہ اسی طرح حسن کے کمرے میں گئی۔ اسے وہاں نہ پایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک دوسری کوٹری میں دیکھا۔ وہ کمزور اور دبلا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، ہڈیاں دکھائی دیتی تھی، رنگ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں دھس گئی تھی۔ لڑکی سے اسے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ کھانا پینا چھوٹ گیا تھا اور آنسو جاری تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پری بہن گھبرا گئی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے اور کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ بھائی کہہ تو صحیح تاکہ میں تیرا علاج کروں اور تجھ پر فدا ہو جاؤں۔ اس کے جواب میں حسن بلک بلک کر رونے لگا۔ حیران ہو کر اس کی بہن بولی، بھائی تو اس مصیبت میں کب سے گرفتار ہے اور یہ بلا تجھ پر کب نازل ہوئی؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ تو اشعار پڑھتا ہے اور تیرے آنسو برابر جاری ہیں۔ بھائی تجھے خدا کی قسم اور اس محبت کا واسطہ جو ہمارے درمیان میں ہے، اپنا حال کہہ اور اپنے بھید سے مجھے مطلع کر اور مجھ سے کچھ نہ چھپا جو میری غیر موجودگی میں تجھ پر گزری، کیونکہ تیری وجہ سے میں پریشان ہوں اور میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اس کے آنسو اور زیادہ بہنے لگے اور اس نے کہا کہ بہن، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں تجھ سے کہوں گا تو میرے مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد نہ کرے گی اور مجھے چھوڑ دے گی اور میں اپنے غم سے مار جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گی، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ جاتی رہے۔ یہ سن کر اس نے سارا ماجرا اور دروازہ کھولنے کے بعد جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اور کہا کہ تمام مصیبت اور بلا اس لڑکی کی محبت اور عشق کی وجہ سے پیش آئی ہے جسے میں نے دیکھا ہے، اور یہ کہ 10 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی پانی پیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی ہچکی لگ گئی۔ اسے اس طرح بے تحاشا روتا دیکھ کر اس کی بہن بھی رو پڑی اور اس کی حالت پر غمگین ہو گئی اور اس کی غربت پر اسے ترس آنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی، خوش ہو اور غم مت کر، کیونکہ تیرے مقصد کے حاصل کرنے میں دل و جان سے کوشش کروں گی اور اپنی جان لڑا دوں گی اور کوئی نہ کوئی ترکیب ڈھونڈ نکالوں گی، خواہ اس میں میری جان اور میرا مال ہی کیوں نہ صرف ہو جائے، انشاءاللہ۔ لیکن بھائی، میرا مشورہ مان، میری بہنوں پر یہ راز نہ کھلنے پائے۔ اگر تو نے ان میں سے کسی سے بھی کہہ دیا تو میری اور تیری دونوں کی جان جائے گی۔ اگر وہ تجھ سے پوچھیں کہ تو نے دروازہ کھولا ہے تو کہیو بالکل نہیں، میں محض اس وجہ سے پریشان خاطر ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں محل میں اکیلا بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حسن نے کہا، یہ بہت ٹھیک ہے، اور اس کے سر کو بوسہ دیا اور وہ خوش ہو گیا اور اس کی گھبراہٹ جاتی رہی۔ اب تک تو وہ اپنی بہن سے ڈر رہا تھا کہ اس نے دروازہ کیوں کھولا اور مارے ڈر کے مارا جا رہا تھا، لیکن اب اس کی جان میں جان آ گئی اور اس نے اپنی بہن سے کھانا مانگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر غمگین اور روتی ہوئی اپنی بہنوں کے پاس گئی۔ انہوں نے اس کی خیریت پوچھی اور اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، کیونکہ وہ بیمار اور 10 دن سے اس کے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں اترا۔ انہوں نے اس کی بیماری کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ سبب یہی ہے کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ہماری غیر موجودگی کے دن اس پر 1000 سال سے بھی زیادہ سخت گزرے۔ اس میں اس کی کوئی خطا نہیں، کیونکہ وہ پردیسی ہے اور اکیلا، اور ہم سب اسے تنہا چھوڑ کر چل دیے، اور اس کے پاس کوئی نہ تھا جو اس کا دل بہلاتا اور اسے گھبرانے نہ دیتا۔ بہرحال وہ ابھی کم سن جوان ہے، اور جب کبھی وہ اپنے خاندان والوں کو اور خاص کر اپنی بوڑھی ماں کو یاد کرتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ دن رات رو رو کر گزارتی ہوگی اور غمگین رہتی ہوگی، اور محض ہماری صحبت سے اسے ذرا ڈھارس بنتی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کی بہنیں بھی رونے لگی اور انہیں اس پر بڑا ترس آیا، اور وہ کہنے لگی کہ واللہ وہ معذور ہے۔ اب لشکر کو رخصت کر کے وہ حسن کے پاس گئی اور اسے سلام کیا اور دیکھا کہ اس کی خوبصورتی مان پڑ گئی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے اور جسم گل گیا ہے۔ ان کا دل بھر آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر باتوں سے اس کی پریشانی دور کرنے اور اس کا دل بہلانے لگی۔
और उससे वो तमाम अजीब व गरीब बातें बयान की जो उन्होंने देखी थी और दुल्हा और दुल्हन में जो पेश आया था। इस तरह वो पूरे 1 महीने तक उसकी दिलजोई करती रही, मगर उसका मर्ज रोज पर रोज बढ़ता गया। जब कभी वो उसे इस हालत में देखती तो आंसू बहाए बगैर न रहती और छोटी लड़की सबसे ज्यादा रोती। महीना गुजरने के बाद लड़कियों का जी शेर व शिकार के लिए चाहने लगा और जब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया तो अपनी छोटी बहन से कहा, तू भी हमारे साथ सवार होकर चल। लेकिन उसने कहा, बहनों, वल्लाह जब तक मेरा भाई अच्छा ना हो जाए और उसकी बीमारी जाती न रहे, मैं उसे इस हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, बल्कि उसके पास ठहर कर उसका दिल बहलाना चाहती हूँ। ये सुनकर उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो बड़ी बामरवत है और कहा कि जो भलाई भी तू उस परदेसी के साथ करेगी तुझे उसका अजर मिलेगा। ये कहकर उन्होंने बहन को उसी के पास रहने दिया और 20 दिन का तोशा लेकर सवार हो गए। जब वो महल से दूर गई और उनकी बहन को यकीन हो गया कि अब वो दूर निकल गई है, तो उसने अपने भाई के पास आकर कहा कि भाई, उठकर मुझे वो जगह दिखा जहां तूने लड़कियों को देखा है। उसने जवाब दिया कि बसरो चशम, बिस्मिल्लाह। और वो उसकी बातें सुनकर खुश हुआ और उसे यकीन आ गया कि अब मेरी मुराद भर आएगी। अब वो चाहता था कि उठकर उसे वो जगह दिखाए, लेकिन उसमें चलने की बिल्कुल सख्त न थी। इसलिए उसे लड़की अपनी गोद में उठाकर ले गई और जीने का दरवाजा खोलकर महल के ऊपर चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर हसन ने वो मकाम और बैठक और पानी का हौज दिखाया जहां उसने लड़कियों को देखा था। उसकी बहन ने कहा कि भाई, अब ये पता कि वो किस तरह से आई थी। हसन ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया, खासकर उस लड़की के मुतालिक जिस पर वो आशिक हो गया था। उसकी तारीफ सुनकर लड़की समझ गई कि वो कौन है और उसका चेहरा जर्द पड़ गया और हालत बेगरगू हो गई। उसने कहा कि बहन, तेरा चेहरा क्यों उतर गया और तेरी हालत अब तक क्यों हो गई? वो बोली कि भाई सुन, ये लड़की जिनों के बादशाहों में से एक अजीम अल शान बादशाह की बेटी है, जिसकी हुकूमत इंसानों और जिनों और जादूगरों और कहानों और कबीलों और अकलीमों और मुल्कों और बहुत से जजीरों पर है, और जिसके पास बहुत मालो दौलत और लश्कर है। हमारा बाप भी उसके नवाबों में से एक नवाब है। उसके पास इतनी ज्यादा फौजें और इतना बड़ा मुल्क और इतनी ज्यादा दौलत है कि किसी का बस उस पर नहीं चलता। उसने अपनी औलाद के लिए, जो वही लड़कियां हैं जिन्हें तूने देखा है, मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा अलग कर दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 साल भर के रास्ते की है और जिसके इर्द गिर्द एक बड़ा समंदर है। वहां तक किसी की पहुंच नहीं, न इंसान की न जिन की। उसके पास 25,000 लड़कियों का एक लश्कर है जो शमशीर जन और नेजाबाज हैं, और जिनमें से हर एक ऐसी है कि जब वो हथियार बांधकर घोड़े पर सवार होती है तो 1000 बहादुर सवारों का मुकाबला कर सकती है। उसकी 7 बेटियां हैं जो बहादुरी और शेर सवारी में दूसरी लड़कियों से कम नहीं बल्कि ज्यादा हैं। उसने अपने मुल्क के उस हिस्से की हुकूमत अपनी बड़ी बेटी को दे रखी है जो 7 में बड़ी है और इतनी बहादुर और शेर सवार और मक्कार और सियासतदान और जादूगर है कि उसके मुल्क के तमाम लोग भी उसे ज़ेर नहीं कर सकते। और जो लड़कियां उसके साथ थी वो उसकी दरबारी और सरदार और मुसाहिब हैं। जिन परों की खालों को वो पहन कर उड़ती हैं वो जिन जादूगरों की बनाई हुई हैं। अगर तू चाहता है कि उस लड़की को अपने बस में लाकर उससे शादी करे तो यहाँ ठहर, उसका इंतजार कर, क्योंकि वो हर चांद रात को यहाँ आती है। जब उन लड़कियों को दोबारा देखे तो चुप जाइयो, इसी तरह वो तुझे हरगिज न देख सकेंगी, वरना आप सबकी जान जाएगी। मेरी बात पल्ले बांध और उसे अच्छी तरह याद कर ले। उनके करीब किसी ऐसी जगह बैठकर इंतजार कर कि वो तेरी आंखों से ओझल ना हो। जब वो अपने कपड़े उतार डालें तो उस लड़की के कपड़ों पर निगाहें जमाई रही हो जो सबसे बड़ी है और जिसे तू चाहता है, और आंख बचाकर उन्हें उठा लीजिए, मगर और किसी के ना उठाइयो, क्योंकि वो अपने ही कपड़े पहनकर अपने वतन जा सकती है। और अगर कपड़े तेरे कब्जे में आ गए तो समझो कि वो लड़की भी तेरी, लेकिन खबरदार उसकी बातों में ना आइयो, क्योंकि वो कहेगी कि ए फिलां, जिसने मेरे कपड़े उठाए हैं मुझे वापस कर दे और मैं तेरे पास तेरी होकर रहूंगी। अगर तूने उसके कपड़े वापस कर दिए तो वो तुझे मार डालेगी और हमारा महल गारत कर देगी और हमारे बाप को कत्ल कर देगी। बस समझ कि तेरी क्या गत बनेगी। जब उसकी बहनें देखेंगी कि उसके कपड़े चोरी हो गए हैं तो वो उसे अकेला छोड़कर उड़ जाएंगी। उस वक्त तू उसके पास जाइयो और उसके बाल पकड़कर खींचियो। जब तू इस तरह उसे खींचेगा तो उसके जादू का जोर टूट जाएगा और वो तेरे बस में आ जाएगी। उसके बाद परों वाला लिबास हिफाजत से रखियो। जब तक वो तेरे कब्जे में रहेगा वो भी तेरी कैद में रहेगी, क्योंकि बगैर उस लिबास के अपने मुल्क को उड़कर नहीं जा सकती। जब तू लड़की को पकड़ ले तो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाइयो, लेकिन उससे ये न कहियो कि तूने उसके कपड़े लिए हैं। अपनी बहन की बातें सुनकर हसन को इत्मीनान हुआ और डर जाता रहा और रंजो कम दूर हो गया।
और उसने उठकर अपनी बहन का सर चूमा और दोनों महल पर से उतरकर अपनी अपनी ख्वाबगाहों में चले गए। हसन रात भर अपने दिल में जबर किए बैठा रहा। जब सवेरा हुआ तो उठा और दरवाजा खोलकर ऊपर चढ़ गया और बैठकर इंतजार करने लगा। जब बैठे बैठे ईशा का वक्त हो गया तो उसकी बहन उसके लिए कुछ खाना पीना लाई और उसके कपड़े बदले और वो सो गया। हर रोज उसका यही दस्तूर था, यहाँ तक कि चांद निकला और चांद देखते ही वो उनका इंतजार करने लगा। वो उसी इंतजार में था कि लड़कियां बिजली की तरह पहुंची और उन्हें देखते ही वो ऐसी जगह जाकर छुप गया जहां से वो उन्हें देख सके मगर वो उसे न देख सके। अब चिड़िया उतरी और उनमें से हर एक अलग अलग बैठ गई। उन्होंने अपने अपने कपड़े उतार डाले और इसी तरह उस लड़की ने भी जिसे वो चाहता था और अपनी बहनों के साथ हौज में उतर गई। अब हसन उठा और चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। खुदा ने उसकी पर्दापोशी की और उसने कपड़े उठा ली। किसी एक लड़की की भी नजर उस पर न पड़ी बल्कि वो आपस में खेलती और चहल करती रही। जब वो फारिग हुई तो बाहर आई और हर एक ने अपना अपना परों का लिबास पहन लिया। उसकी महबूबा भी अपना चोला पहनने आई लेकिन उसे न पाया। वो चीखने चिल्लाने और अपना मुंह पीटने लगी और अपने कपड़े फाड़ डाले। उसकी बहनों ने आकर पूछा तो उसने कहा कि मेरे परों का लिबास कोई उठा ले गया है। ये सुनकर वो भी रोने पीटने और मुंह पर तमाचे मारने लगी। जब रात हुई तो उसके साथ ठहर न सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे महल के ऊपर छोड़ दिया। लड़की की बहनें उसे अकेला छोड़कर उड़ गईं। जब हसन ने देखा कि वो उड़ गईं, अब नजर नहीं आती और लड़की अकेली रह गई, तो उसने उसे ये कहते सुना कि ए शख्स जो मेरे कपड़े ले गया है और मुझे नंगा कर गया है, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा चोला मुझे वापस दे दे और मेरे बदन को छुपा। खुदा तुझे वो हसरत न दे जो उसने मुझे दी है। जब हसन ने उसकी ये बातें सुनी तो उसकी मोहब्बत के मारे उसकी अकल जाती रही और उसका इश्क दोबारा हो गया और उससे सब्र न हो सका और वो दौड़कर उसके पास गया, झुपट कर उसको पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। उसे लेकर महल के नीचे उतरा और अपने कमरे में ले जाकर अपनी कपा उसके ऊपर डाल दी। वो रोती जाती और दांतों से अपने हाथ काटती जाती थी। हसन उसे बंद करके अपनी बहन के पास गया और उससे कहा कि वो मेरे हाथ आ गई है, मैं कामयाब हो गया हूँ, उसे अपने कमरे में ले आया हूँ और इस वक्त वो मेरे कमरे में बैठी दांतों से अपने हाथ काट रही है। ये सुनकर उसकी बहन उठी और जाकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और देखा कि वो गमजदा बैठी रो रही है। उसके आगे जमीन चूमकर उसे सलाम किया। लड़की ने कहा कि ए शहजादी, कि तुम जैसे लोग शहजादियों के साथ ऐसी नाशाइस्ता हरकत करते हैं। तुझे मालूम है कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बादशाह है और तमाम जिन बादशाह उससे डरते हैं और उसका लोहा मानते हैं। उसके पास इतने जादूगर और हकीम और कहान और शैतान और जो हैं कि किसी का जोर उसके ऊपर नहीं चलता। उसके मातहत इतनी मखलूकात है कि जिनकी गिनती सिवाय खुदा के किसी को मालूम नहीं। ए शहजादी, ये तुम्हारे लिए कहाँ तक ज़ेबा है कि तुम इंसानों को अपने यहाँ ठहराओ और उनसे अपना और हमारा हाल कह दो, वरना ये इंसान यहाँ आया कैसे? हसन की बहन बोली कि ए शहजादी, ये इंसान मरवत का पक्का है और वो कोई बुरा काम नहीं चाहता। उसे तुझसे मोहब्बत हो गई है और औरतें तो मर्दों ही के लिए पैदा हुई हैं। अगर वो तुझ पर आशिक न होता तो तेरी वजह से वो बीमार न पड़ता और तेरी मोहब्बत में उसकी जान न जाती। गर्ज के उसने वो तमाम बातें उससे कह दी जो हसन ने अपने इश्क के बारे में उससे कही थी, कि लड़कियां किस तरह उड़ती हुई आईं और उसे उनमें से सिवाय तेरे कोई पसंद न आई, क्योंकि वो सब तेरी कनीजें थी। तू उन्हें हौज में डुबकियां देती थी, लेकिन उनकी मजाल न थी कि वो अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाएं। ये बातें सुनकर उसे रिहाई की उम्मीद बिल्कुल जाती रही। अब हसन की बहन उठी और जाकर उसके लिए एक नफीस पोशाक लाई और उसे पहनाकर उसके लिए खाना पीना लाई और दोनों ने बैठकर खाया और लड़की के दिल को इत्मीनान हुआ और उसका डर जाता रहा। हसन की बहन बराबर नरमी से बातें करती जाती और कहती कि रहम करके उसे एक नजर देख ले, क्योंकि वो तेरी मोहब्बत का मारा है। वो उसे ढारस देती और राजी करती और अच्छी अच्छी बातें करती, मगर लड़की बराबर रोए जाती। जब सवेरा हुआ तो उसे जरा तस्कीन हुई। उसने रोना बंद किया और उसे यकीन हो गया कि वो फंस गई है, छुटकारा नामुमकिन है। और वो हसन की बहन से कहने लगी कि ए शहजादी, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं परदेश में रहूं और अपने वतन और खानदान वालों और बहनों को छोड़ दूं, तो खुदा के हुक्म पर सब्र ही करना बेहतर है। अब हसन की बहन ने उसके लिए एक कमरा खाली कर दिया, जिससे ज्यादा खूबसूरत महल में न था। उसके साथ बैठकर बराबर उसके दिलदारी करती और उसका गम गलत करती, यहाँ तक कि वो मान गई। उसे इत्मीनान हो गया और वो हंसने लगी। और जो रंजो गमों से अपने खानदान वालों और वतन और बहनों, माँ बाप और मुल्क की जुदाई से हुआ था, जाता रहा। अब हसन की बहन उठकर हसन के पास गई और उसे कहा कि उसके कमरे में जाकर उसके हाथ पहुंचूं। हसन ने जाकर ऐसा ही किया और उसके बाद उसकी पेशानी को बोसा देकर कहा कि ए हसीनों की सरदार और रूहों की जान और देखने वालों की मुसर्रत, इत्मीनान रख,
میں نے تجھے محض اس واسطے لیا ہے کہ قیامت تک میں تیرا غلام بن کر رہوں، اور یہ میری بہن تیری لونڈی۔ اے میری روح رواں، میرا ارادہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے موافق میں تجھ سے نکاح کروں اور اپنے وطن جا کر ہم دونوں بغداد میں رہیں، اور میں تیرے لیے غلام اور باندیاں خریدوں۔ میری ماں جو بہترین عورت ہے تیری خدمت کرے۔ ہمارا ملک دنیا میں سب سے اچھا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے کسی اور ملک میں نہیں، اور وہاں کے لوگ اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ اس قسم کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانا چاہتا تھا، اور وہ اس سے بات تک نہ کرتی تھی کہ کسی نے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حسن نکل کر باہر گیا اور دیکھا کہ لڑکیاں سیر و شکار سے آ گئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور خوش آمدید کہہ کر انہیں سلام کیا، اور اس نے انہیں سلامتی اور خیر و عافیت کی دعا دی۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر سے اتر کر محل کے اندر آئی اور اپنے اپنے کمروں میں داخل ہو گئی، اور میلے کو چلے کپڑے اتار کر خوبصورت پوشاکیں پہنی، اور ہرن، نیل گائے، خرگوش، شیر جو شکار مار کر لائی تھی ان میں سے ایک حصہ ذبح کرنے کے لیے دے دیا، اور باقی کو اپنے پاس محل میں رہنے دیا۔ حسن کمر کسے چھری ہاتھ میں لیے ذبح کرتا جاتا تھا، اور وہ کھیل کود رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر وہ کھانا پکانے میں لگ گئی۔ حسن نے بڑھ کر بڑی لڑکی کے سر کو بوسہ دیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے سب کا سر چومتا، اور وہ کہتی کہ بھائی تو ہمارے ساتھ بہت انکساری کر رہا ہے، اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ تجھے ہم سے اتنی محبت کیوں ہے۔ بھائی تجھے ایسا ہرگز نہ چاہیے، بلکہ یہ عاجزی تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ تو انسان ہے، اور انسان ہم سے برتر ہیں کیونکہ ہم جن ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ خیر تو ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تیرے رونے سے ہماری خوشی مٹی میں مل جاتی ہے۔ غالباً تو اپنی ماں اور وطن کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم ابھی تیار ہو کر تجھے تیرے وطن دوستوں کے پاس پہنچا آتی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تم سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ وہ بولی کہ ہم میں سے کس نے تجھے پریشان کر رکھا ہے کہ تو اتنا غمگین ہے؟ حسن کو جواب میں یہ کہتے شرم معلوم ہوئی کہ مجھے اس لڑکی کی محبت نے پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنی حالت ان پر بالکل ظاہر نہ کی۔ اب اس کی بہن اٹھی اور کہنے لگی کہ اس نے ایک اڑتی ہوئی چڑیا پکڑی ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس چڑیا کو سدھارنے میں اس کی مدد کرو۔ سب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ہم سب تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا ماجرا تو بیان کر اور اپنی حالت ہم سے بالکل مت چھپا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ میرا قصہ انہیں سنا دے، کیونکہ میں ان سے شرماتا ہوں اور ان کے آگے ایسی بات بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بہن بولی کہ بہنوں، جب ہم اس بیچارے کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ محل کے اندر گھبرانے لگا اور اسے ڈر لگا کہ کہیں کوئی گھس نہ آئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ انسانوں کی عقل کم ہوتی ہے، اس لیے جب وہ اکیلا بیٹھے بیٹھے گھبرایا تو اس نے دروازے کو کھول کر جو اوپر کی طرف جاتا ہے چھت پر چڑھ گیا اور وہاں بیٹھ کر گھاٹی کی سیر کرنے لگا، لیکن دروازے کی طرف برابر دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی محل میں نہ گھس جائے۔ ایک دن وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ 10 چڑیا محل میں اتری اور پھرتے پھرتے حوض پر آ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک چڑیا ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ ان سب کی چوچے مارتی ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اسے ٹھونگ تک لگائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے پنجے گریباں کے پاس لے گئیں اور پروں کے لباس کو کھول کر اس میں سے نکل آئیں، اور ہر ایک ان میں سے ایک ایسی لڑکی بن گئی جیسے 14ویں رات کا پورا چاند۔ حسن ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ کپڑے اتار کر پانی کے اندر گئیں اور کھیلنے کودنے لگی۔ بڑی لڑکی انہیں گوتے دیتی مگر کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکتا۔ اس کا چہرہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور جسم سب سے زیادہ سنڈولا اور پوشاک سب سے زیادہ صاف ستھری۔ حسن کھڑا ہوا انہیں اس حالت میں برابر دیکھتا رہا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے حوض میں سے نکل کر اپنے کپڑے پہنے اور پروں کا لباس پہن کر ایک ساتھ اڑ گئے۔ بڑی لڑکی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے اس کے پروں کا لباس کیوں نہیں چرا لیا۔ اس پر وہ بیمار پڑ گیا اور محل کے اوپر بیٹھے بیٹھے ان کا انتظار کرنے لگا، اور کھانا پینا بند اور سونا سوگند ہو گیا۔ چاند رات تک اس کی یہی حالت رہی کہ موافق دستور کے وہ پھر آئیں اور اپنے کپڑے اتار کر حوض میں چلی گئیں۔ اب اس نے بڑی لڑکی کا چولا چرا لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بغیر ان کے نہیں اڑ سکتی تو اسے لے کر چھپا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر ہو جائے اور وہ مجھے مار ڈالے۔ جب باقی چڑیائیں اڑ گئی تو وہ نکلا اور لڑکی کو پکڑ کر محل پر سے نیچے لے آیا۔ اس کی بہن نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کے پاس فلاں کمرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہن ذرا اس کی تعریف تو بیان کر۔ وہ بولی کہ وہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے اور اس کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے، اس کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا قد بیج سے زیادہ لچکدار ہے، اس کی آنکھیں کالی کالی ہیں اور چہرہ آبدار اور پیشانی چمکدار اور سینہ جیسے جوہر اور دونوں پستانے جیسے انار اور دونوں رخسار جیسے سیب۔ اس کے پیٹ میں شکنیں پڑی ہوئی ہیں
और उसकी नाप हाथी दांत का डिब्बा है जिसमें मुश्क भरा हुआ है। उसकी पिंडलियां ऐसी हैं जैसे मरमर के दो खंभे। सुरमई आंखों और पतली कमर और भारी कूल्हों और मीठी मीठी बातों से वो दिलों पर कब्जा कर लेती है। ये तारीफ सुनकर लड़कियों ने हसन की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हमें ले चला और दिखा। वो गिरता पड़ता उन्हें ले गया और उस कमरे को खोला जिसमें शहजादी थी और आगे आगे उसमें दाखिल हुआ। जब उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो कैसी हसीन है तो उसके आगे जमीन चूमने लगी और उसकी जाहिरी और बातनी खूबसूरती पर मुतज्जिब हुई और उसे सलाम करके कहा कि बड़े बादशाह की बेटी, यह अजीब बात है, लेकिन अगर तू इस इंसान की तारीफ औरतों से सुने तो उम्र भर ताज्जुब करे। वो तो इससे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन ये शहजादी वो कोई बुरी हरकत नहीं करना चाहता बल्कि हलाल तरीके से तेरा तालिब है। अगर हमें मालूम होता कि लड़कियां मर्दों से मुस्तफी हैं तो हम उसे बाज रखती, बजाय उसके कि वो तेरे पास कोई कासिद भेजे। वो खुद आया है, उसने हमसे कहा है कि उसने परों का लिबास जला दिया, वरना वो हम उससे ले लेते। अब उनमें से एक लड़की शहजादी की मर्जी से उसकी वकील बन गई और उसका निकाह हसन से करा दिया। हसन ने उससे मुसाफा किया और उन्होंने शहजादियों की शान के मुआफिक जश्न मनाया। अब उसे उससे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। जब तख्त की रात खत्म हुई और सुबह को दुल्हन दुल्हा दोनों कुछ कुछ उठे तो हसन की मोहब्बत पहले से दो बाला थी। वो अपने हुजराए उरूसी से निकला तो शहजादी की तारीफ में अशार पढ़ता हुआ। लड़कियां तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। अशार सुनकर कहने लगी कि ए शहजादी, सुना कि ये इंसान तेरी तारीफ किस तरह शेर में करता है। शहजादी ये सुनकर बाग बाग हो गई। हसन ने 40 दिन उसके साथ बड़े मजे से गुजारे और लड़कियां रोज उसकी दावतें करती, उसको नए नए तोहफे देती। वो उनके दरमियान बड़ा खुश और खुरम रहता। शहजादी भी उनके साथ रहकर इतनी खुश हुई कि अपने लोगों को भूल गई। 40 दिन के बाद हसन ने ख्वाब में अपनी माँ को देखा कि वो उसके लिए गमगीन है। उसकी हड्डियां निकल आई है और बदन घुल गया है और हाल से बेहाल हो गई है, लेकिन वो खुद बड़ी अच्छी हालत में है। उसे इस हाल में देखकर माँ ने कहा कि ए हसन मेरे बेटे, तू दुनिया के ऐश में पड़ा हुआ है कि मुझे भूल गया। देख तेरे पीछे मेरा क्या हाल हुआ है। मैं तुझे भूली नहीं और मरते दम तक मेरी जुबान तेरा जिक्र न छोड़ेगी। मैंने घर में तेरी कब्र बना रखी है ताकि तुझे कभी ना भूलूं। काश मैं इतने दिनों जिंदा रहूं कि तुझे अपने पास देख लूं और हम पहले की तरह मिल जाएं। आंख खुली तो आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वो बेहद गमगीन थी। माँ की याद उसे तड़पा रही थी। लाख करवटें बदली फिर भी नींद न आई। जब सवेरा हुआ तो लड़कियां दस्तूर के मुवाफिक उसके पास आई और उसे सुबह बखैर कहा और हस्बे मामूल उससे मजाक करने लगी, लेकिन वो उनकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा ना हुआ। उन्होंने उसकी बीवी से पूछा कि क्या माजरा है। उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी हालत पूछ। वो उसके पास गई और कहा कि मेरे शोहर, खैरियत तो है। उसने ठंडा सांस भरकर उसे अपना ख्वाब बयान कर दिया। बीवी ने उनसे वो बातें कह दी जो उसने कही थी। ये सुनकर लड़कियों को उसके हाल पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह, चल, हम तुझे माँ की ज़ियारत से रोक नहीं सकते, बल्कि जिस तरह हमसे हो सकेगा तेरी मदद करेंगे ताकि तू अपनी माँ से मिले। लेकिन हम चाहते हैं कि तू हमसे भी मिलता रहे, कोई साल में एक बार ही क्यों ना हो, बिल्कुल हम में जुदाई ना हो जाए। उसने कहा सर आंखों पर। लड़कियों ने फौरन उठकर राह का तोशा उसके लिए तैयार किया और उसके दुल्हन को गहनों और पोशाकों और ऐसी ऐसी बेशबहा चीजों का जहज दिया जिनकी तारीफ नहीं हो सकती, और हसन को ऐसे ऐसे तोहफे दिए जिन्हें लिखने से कलम आजिज है। उसके बाद उन्होंने तबला बजाया और हर तरफ से ऊँटनियां आ पहुंची। उनमें से उन्होंने इतनी ऊँटनियां चुन ली जो सारा जहेज ले जा सके। अब उन्होंने लड़की और हसन को सवार किया और उनके साथ 25 तख्त सोने के और 50 चांदी के कर दिए और 3 दिन तक उनके साथ गई और 3 महीने की राह तय की। उसके बाद उन्होंने दोनों को रुखसत करके लौटने का कसद किया, लेकिन उसकी छोटी बहन उसके गले लिपटकर इतना रोई कि उसे गश आ गया। जब उसे फिर होश आया तो उससे रुखसत हुई और उसे ताकीद कर दी कि जब तुझे माँ से मिलकर तसल्ली हो जाए तू हर 6 महीने मुझसे मिलने जरूर आइयो। और उससे यह भी कहा कि जब तुझे कोई खतरनाक बात पेश आए और तुझे उससे डर लगे तो मजूसी का तबला बजाइयो, तो यही ऊँटनियां हाजिर हो जाएंगी और तू उन पर सवार होकर हमारे पास आ जाइयो। हसन ने उसकी कसम खा ली और उन्हें कसम दी कि वो लौट जाएं। वो उससे रुखसत होकर लौट गई, लेकिन उसकी जुदाई पर बेहद गमगीन थी और सबसे ज्यादा गम उसकी छोटी बहन को था। उसे बिल्कुल करार और चैन न आता, बल्कि वो दिन रात रोती रहती। ये तो लड़कियों का किस्सा हुआ। अब हसन का माजरा सुनो। वो दिन रात अपनी बीवी के साथ जंगल और बयाबा और घाटियां पहाड़ियां तय करता सही सलामत बसरे पहुंच गया और वहां से रवाना होकर ऊँटनियों को अपने घर के दरवाजे पर ला बिठाया और आगे बढ़कर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने सुना कि उसकी माँ जख्मी दिल से आहिस्ता आहिस्ता रो रही है। माँ को रोते सुनकर हसन भी रोने पीटने लगा और जोर से दरवाजे पर दस्तक दी
माँ ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है। उसने कहा कि खोल तो सही। माँ दरवाजा खोलकर उसे देखने लगी और उसे पहचान कर बेहोश हो गई। हसन उसे प्यार करने लगा जहां तक कि उसे होश आया और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और माँ उसे बोसा देने लगी। उसके बाद हसन अपना सारा साजो सामान मकान के अंदर लाने लगा और लड़की खड़ी उसे और उसकी माँ को देखती रही। हसन और उसकी माँ बैठकर बातें करने लगे और माँ ने कहा कि बेटा, अजमी के साथ तेरी कैसी गुजरी? वो बोला कि अम्मा, वो अजमी तो मजूसी निकला जो खुदा को छोड़कर आग की पुरस्तिश करता था। ये कहकर उसने उसकी सारी हरकतें बयान की कि उसने मुझे ले जाकर ऊंट की खाल में बंद किया और उसे सी दिया। चिड़िया मुझे वहां से उठा ले गई और पहाड़ के ऊपर जाकर उतार दिया। पहाड़ पर मैंने बहुत से इंसानों की लाशें देखी जिनसे मजूसी अपना मकसद पूरा करता और फिर उन्हें वहीं पहाड़ पर पड़ा रहने देता। वहां से मैं समंदर में कूद पड़ा और खुदा ने मुझे सही सलामत लड़कियों के महल तक पहुंचा दिया और एक लड़की ने मुझे भाई बना लिया और मैं उन्हीं लड़कियों के पास रह पड़ा। उसके बाद फिर वो मजूसी वहां पहुंचा और मैंने उसे कत्ल कर दिया। फिर मुझे उस लड़की से इश्क हो गया और मैंने उसे पकड़ लिया और फिर ये वाकयात पेश आए, यहाँ तक कि अब हम फिर मिल गए हैं। माँ उसकी सरे-गुज़िश्त सुनकर हैरान हो गई और उसकी सलामती पर खुदा का शुक्र बजा लाई और जाकर सामान देखा और बेटे से पूछा कि ये क्या है। जब उसने बताया कि उनमें क्या क्या है तो माँ बहुत खुश हुई और लड़की के पास चली ताकि उससे मिले। जो ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसका हुस्न देखकर होश जाते रहे, निहाल हो गई। उसकी आंखें, नाक, कदो कामत बहुत पसंद आया। उसने कहा कि बेटा, खुदा का शुक्र है कि तू खैरियत से रहा और खैरियत से लौट आया। उसके बाद वो लड़की के पास जा बैठी और प्यार की बातें करके उसका दिल बहलाने लगी। दूसरे दिन सुबह को वो बाजार जाकर 10 जोड़े पोशाक के खरीद लाई जिनसे बेहतर शहर में न थे और कालीनें खरीदी और लड़की को पोशाक पहनाई और खूबसूरत गहनों से उसे आरास्ता किया। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि बेटा, हम लोग इतने मालो दौलत के साथ इस शहर में नहीं रह सकते। हम गरीब हैं, लोग हम पर कीमियागरी का इल्जाम लगाएंगे। चल हम चलकर दारुस्सलाम बगदाद में रहें जो खिलाफत की जगह है और तू वहां दुकान में बैठकर खरीदो फरोख्त कीजिए और खुदा से डर कर रही हो, वो इस माल में तुझे बरकत देगा। हसन को अपनी माँ की राय ठीक मालूम हुई और वो फौरन उसके पास से उठा और जाकर मकान को फरोख्त कर दिया और ऊँटनियों पर अपना सारा मालो मता लादा और अपनी माँ और बीवी को सवार करके चल दिया और चलते चलते दजले पर पहुंचा और एक कश्ती को बगदाद के लिए किराए पर लिया और सारा माल और सामान उसमें रखकर माँ और बीवी को उसमें बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। हवा मुआफिक थी। कश्ती 10 दिन में बगदाद पहुंच गई। वहां पहुंचकर सब बहुत खुश हुए। जब कश्ती शहर के अंदर दाखिल हुई तो वो शहर में उतर पड़ी और एक सराय में एक कोठरी किराए पर ली और कश्ती में से सारा सामान लाकर उसमें रख दिया। सराय में उतरकर एक रात आराम किया। जब सवेरा हुआ तो उसने अपने कपड़े बदले और दलाल ने उसे देखकर पूछा कि तुझे किस चीज की जरूरत है। उसने कहा कि मैं एक मकान चाहता हूँ जो खूबसूरत और बड़ा हो। दलाल ने उसे तमाम मकान दिखाए जो उसके पास थे और हसन को उनमें से एक घर पसंद आया जो किसी वजीर का था। उसने उसे 1 लाख दीनार में खरीद कर उसकी कीमत अदा कर दी। उसके बाद वो उस सराय में आया जहां उतरा था और वहां से सारा माल और सामान मुंतकिल कर दिया और फिर बाजार जाकर घर के लिए जरूरी बर्तन और फर्श वगैरह खरीदा। गुलाम मोल लिए, मिन जुमला उनके अंदर के लिए एक गुलाम बच्चा। यहाँ उसने इत्मीनान से अपनी बीवी के साथ 3 साल तक निहायत ऐश व अशरत से जिंदगी बसर की और बीवी से उसके 2 लड़के हुए जिनमें से एक का नाम उसने नासिर रखा और दूसरे का मंसूर। इस मुद्दत के बाद अपनी बहनों की याद आई और ये सोच करके उनका कितना एहसान उस पर है और उन्होंने किस तरह उसका मकसद हासिल करने में उसकी मदद की है। वो उन्हें देखने का मुश्ताक हो गया और शहर के बाजार में जाकर उनके लिए कुछ गहने और उम्दा उम्दा कपड़े और मेवे खरीदे जो उन्होंने कभी ना देखे होंगे, बल्कि उन्हें जानती तक ना होंगी। माँ ने उन तोहफों के खरीदने का सबब पूछा। उसने कहा कि मैं अपनी बहनों के पास जाने का इरादा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर हर तरह का एहसान किया है और जो रोजी आज मुझे मिल रही है उन्हीं की इनायत और एहसान का बदौलत है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें जाकर देखूं और खुदा को मंजूर है तो जल्द लौट आऊंगा। माँ बोली कि बेटा देर न कीजिए। उसने कहा कि अम्मा, तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। सुन, जो संदूक जमीन में दफन है उसमें इसका परों का लिबास है। उसे हिफाजत से रखियो ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके हाथ लग जाए और वो उसे पहन कर उड़ जाए और अपने बेटों को साथ लेती जाए और मुझे उनका पता न चले और मैं उनकी वजह से मारे गम के मर जाऊं। अम्मा खबरदार, उससे इसका जिक्र मत कीजिए। और सुन, वो जिन्नों के एक बादशाह की बेटी है। कोई जिन बादशाह न उससे बड़ा है और न किसी के पास उससे ज्यादा लश्कर और मालो दौलत है। और सुन, वो अपनी कौम की सरदार है और अपने बाप की सबसे ज्यादा चहेती। वो बड़ी खुददार है। उसकी खिदमत खुद अपने हाथ से कीजिए और उसे न घर से निकलने दीजिए और न खिड़की या दीवार पर से झांकने दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात से डर है
کہ کہیں اسے ہوا نہ لگ جائے، اگر اس کا ذرا بال بیکا ہوا تو میں جان دے دوں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا خدا نہ کرے کہ میں تیرے کہنے کے خلاف کروں، کیا میں پاگل ہو گئی ہوں کہ تیرا کہنا نہ مانوں؟ بیٹا تو بے دھڑک سفر پر جا، اور خدا نے چاہا تو جب تو لوٹ کر آئے گا سب خیریت ہوگی، اور تو اسے دیکھے گا اور وہ تجھ سے کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن بیٹا آنے جانے سے زیادہ نہ ٹھہریو۔ حسن نے چلتے وقت ماں سے بیوی کے بارے میں سارا دستور العمل بتا دیا۔ خدا کا کرنا کہ اس کی بیوی وہ تمام باتیں سن رہی تھی جو اس نے ماں سے کی، مگر ماں بیٹوں کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ اس کے بعد حسن اٹھ کر روانہ ہو گیا اور شہر کے باہر پہنچ کر تبلا بجایا اور اونٹنیاں آ پہنچی۔ ان پر اس نے عراق کے تحفوں کے 20 گھٹے لادے اور ماں اور بیوی بچوں سے رخصت ہوا۔ ایک لڑکے کی عمر 1 سال کی تھی اور دوسرے کی 2 سال۔ اس کے بعد وہ پھر ماں کے پاس گیا اور اسے دوبارہ وہی باتیں سمجھا کر سوار ہو گیا اور اپنی بہنوں کی طرف چل دیا، اور 10 روز تک دن رات گھاٹیوں اور پہاڑوں اور میدانوں اور پتھریلی زمین پر چلنے کے بعد 11ویں روز محل میں پہنچ کر بہنوں سے ملا اور جو وہ لایا تھا انہیں پیش کیا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اس کی چھوٹی بہن نے محل کو اندر اور باہر سے آراستہ کیا، سوگاتیں لی اور اسے پرانے دستور کے موافق ایک کمرے میں اتارا اور اس کی ماں اور بیوی کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی سے مجھے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن یہ دیکھ کر کہ وہ خوش ہے اور باخیریت ہے بہت خوش ہوئی، اور وہ ان کے ساتھ 3 مہینے تک دعوتیں کھاتا اور خوشیاں مناتا اور سیر و شکار میں مشغول رہا۔ یہ تو اس کا قصہ ہوا، اب اس کی ماں اور بیوی کی داستان سنو۔ حسن کے چلے جانے کے بعد اس کی بیوی 2 روز اس کی ماں کے ساتھ چپ چاپ رہی، لیکن تیسرے روز اس نے کہا کہ سبحان اللہ، میں 3 سال سے اس کے ساتھ ہوں مگر آج تک حمام جانا نصیب نہیں ہوا، اور رونے لگی۔ ماں کو اس کی حالت پر ترس آیا اور کہنے لگی کہ بیٹی ہم لوگ اس جگہ پر پردیسی ہیں اور تیرا شوہر شہر کے باہر گیا ہوا ہے، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو تیری خدمت کے لیے حاضر تھا۔ میرا تو یہ حال ہے کہ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ بیٹی میں پانی گرم کر کے تیرا سر یہی گھر کے حمام میں دھلا دیتی ہوں۔ وہ بولی ہے میری آقا، اگر تو کسی باندی سے یہ بات کہتی تو وہ ہرگز ہرگز تیرے پاس نہ ٹھہرتی، بلکہ تجھے مجبور کر دیتی کہ تو اسے بازار لے جا کر بیچ ڈالے۔ اے میری آقا، مرد تو اپنی غیرت کی وجہ سے مجبور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت گھر سے باہر گئی تو وہ ضرور عصمت فروشی کرے گی، لیکن اے میری آقا تمام عورتیں ایک سی نہیں ہوتی، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر عورت کوئی کام کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کر سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے، نہ وہ حمام جانے سے رک سکتی ہے، نہ کسی اور کام سے، بلکہ جو وہ چاہے کر گزرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے اور اپنے آپ کو کوسنے اور اپنی غربت پر افسوس کرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر ساس کو اس پر ترس آ گیا، سمجھ گئی کہ وہ ٹھیک کہتی ہے، اور اس نے حمام کی ضروری چیزیں تیار کی اور بہو کو لے کر حمام گئی۔ جب وہ حمام میں داخل ہوئی اور کپڑے اتارے تو تمام عورتیں اسے دیکھنے خدا کی پاکی بیان کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ خدا نے یہ کیسی حسین صورت بنائی ہے، جو عورت بھی حمام کے پاس گزرتی اندر جا کر تماشا دیکھتی۔ اس طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی، عورتوں کے ٹھٹھ لگ گئے، راستہ رک گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس روز امیر المومنین ہارون رشید کی ایک کنیز بھی ادھر سے گزری جس کا نام تحفۃ العواد تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، حمام میں آنے جانے کا راستہ بند ہے، تو اس کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے لڑکی کا ذکر کیا، کنیز اس کے پاس گئی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے، خدا کی پاکی بیان کرنے لگی، اس نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہے۔ اتنے میں لڑکی غسل میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ نہا چکی اور باہر نکل کر کپڑے پہنے تو اس کا حسن اور دوبالا ہو گیا۔ تھوڑی دیر مسند پر بیٹھی، عورتیں اسے برابر دیکھتی رہی، پھر وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی چل دی۔ خلیفہ کی کنیز تحفۃ العوادہ اس کے ساتھ ساتھ چلی اور اس کا گھر دیکھ کر خلیفہ کے محل کو لوٹ گئی اور شہزادی زبیدہ کے پاس پہنچ کر اس کے آگے زمین چومی۔ شہزادی زبیدہ نے کہا، اے تحفہ تجھے حمام میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس نے کہا، اے میری آقا، میں نے ایک عجوبہ دیکھا ہے جس کی مثال نہ مردوں میں پائی جاتی ہے نہ عورتوں میں۔ اس میں اتنی مشغول اور حیران رہی کہ میں نے سر تک نہیں دھویا۔ زبیدہ بولی، یہ تحفہ وہ کیا؟ کنیز نے جواب دیا، میری آقا، میں نے حمام میں ایک لڑکی دیکھی جس کے ساتھ چاند جیسے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس کی نظیر نہ پہلے کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ آئندہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ اس کی شکل و صورت کی مثال تمام دنیا میں موجود نہیں۔ اے میری آقا، تیرے احسانوں کی قسم، اگر امیر المومنین کو اس کی خبر ہو جائے تو وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے چھین لے، کیونکہ اس جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں۔ میں نے اس کے شوہر کے متعلق بھی پوچھا ہے، وہ ایک تاجر ہے جس کا نام حسن بصری ہے۔ جب تک وہ حمام سے نکل کر اپنے گھر نہ پہنچ گئی، میں اس کے پیچھے پیچھے لگی رہی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے جو وزیر کا ہے اور جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سمندر کی طرف
और दूसरा खुशकी की तरफ। ए मेरी आका, मैं डरती हूँ कि अगर अमीरुल मोमिनीन के कानों तक ये खबर पहुंच गई तो कहीं वो शिरा के खिलाफ उसके शोहर को कत्ल करके उससे शादी न कर ले। कनीज से लड़की की तारीफ सुनकर शहजादी जुबैदा ने कहा, दूर हो, क्या वो ऐसी खूबसूरत है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दीन को दुनिया के हाथ से बेच डाले और उसके पीछे शिरा की मुखालफत करे? खुदा की कसम, मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ। अगर वो ऐसी ही ना हुई जैसा तू कहती है तो मैं तेरी गर्दन मारूंगी। छोकरी, साल में 360 दिन होते हैं और अमीरुल मोमिनीन के महल में इतनी ही कनीजें हैं, क्या उनमें से किसी में वो खूबियां नहीं जो उसमें है? कनीज बोली, ए मेरी आका, खुदा की कसम नहीं। न कुल बगदाद में उसकी मिसाल है और न अजम अरब में, बल्कि वो वाकया तो ये है कि खुदा ने उसकी मिसाल पैदा ही नहीं की। यह सुनकर शहजादी जुबैदा ने मसरूर को बुलाया। मसरूर ने आकर उसके आगे जमीन चूमी। जुबैदा ने कहा कि ए मसरूर, वजीर के उस घर को जा जिसके 2 दरवाजे हैं, एक समंदर की तरफ, दूसरा खुशकी पर, और फौरन उस लड़की को जो वहां मौजूद है उसके दोनों बच्चों और बुढ़िया के साथ ले आ। मसरूर हुक्म पाते ही वहां से रवाना होकर मकान के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। हसन की बुढ़िया मां ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है। उसने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन का गुलाम मसरूर। बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया। मसरूर ने अंदर जाकर उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि क्या चाहता है। मसरूर ने कहा कि कासम की बेटी हारून रशीद की बीवी शहजादी जुबैदा ने तुझे, तेरी बहू और उसके बच्चों को बुलाया है, क्योंकि औरतों ने उसके आगे तेरी बहू और उसके हुस्न की तारीफ की है। हसन की मां बोली कि मसरूर, हम परदेसी हैं और लड़की का शोहर जो मेरा बेटा है यहाँ मौजूद नहीं। उसका हुक्म है कि ना मैं और ना उसकी बीवी घर से बाहर निकलकर किसी शख्स के पास जाए। मुझे डर है कि अगर उसके साथ कोई बात पेश आई तो मेरा बेटा अपनी जान दे देगा। ए मसरूर, तेरी मेहरबानी होगी अगर तू हमसे कोई ऐसी बात ना करे जिसकी हम में ताकत नहीं। मसरूर ने कहा, ए मेरी आका, अगर मैं जानता कि उसमें तेरे लिए कोई अंदेशा है तो तुझे हरगिज तकलीफ न देता। शहजादी जुबैदा बस इतना चाहती है कि उसे देख ले, उसके बाद वो वापस चली आए। उसकी मुखालफत न कर वरना पछताएगी। मैं तुझे जिस तरह ले जाऊंगा, अगर खुदा को मंजूर है तो उस तरह वापस पहुंचा जाऊंगा। हसन की मां से मसरूर की मुखालफत बंद न पड़ी और उसने अंदर जाकर लड़की को बनाया, संवारा और फिर वो सब मसरूर के पीछे पीछे खलीफा के महल की तरफ रवाना हो गए। मसरूर ने उन्हें अंदर ले जाकर शहजादी जुबैदा के आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने जुबैदा के आगे जमीन चूमी और उसे दुआ दी। लड़की ने जमीन चूम कर अपना मुंह खोल दिया, जिसे देखकर आसमान पर चांद शर्मा जाए। जुबैदा की नजर जब उस पर पड़ी तो वो देखती की देखती रह गई। उसके नूर और चेहरे की रोशनी से सारा महल चमक उठा। जुबैदा उसका हुस्न देखकर दंग हो गई और यही हाल सारे महल वालों का हुआ। जो उसे देखता हवास भागता हो जाता और उसके मुंह से बात तक न निकलती। अब शहजादी जुबैदा उठ खड़ी हुई, लड़की का हाथ पकड़कर सीने से लगा लिया, अपने साथ तख्त पर बिठाया और हुक्म दिया कि महल ले जाया जाए। उसके बाद उसने एक निहायत शानदार, जोड़ा और बेहतरीन जवाहरात का एक हार मंगवा कर उसे पहनाया और कहा कि ए हसीनों की सरताज, तू मुझे बहुत पसंद है, तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तेरे पास कौन सी उम्दा चीज है? लड़की बोली, है मेरी आका, मेरे पास परों का एक लिबास है। अगर मैं उसे तेरे सामने पहनूं तो उसकी कारीगरी पर तुझे ताज्जुब होगा और जो कोई उसे देखेगा उसका जिक्र नस्लन बाद नस्लन करता रहेगा। जुबैदा ने पूछा कि वो तेरा लिबास कहाँ है? उसने जवाब दिया कि मेरी सास के पास, मेरी सास से मांग ले। शहजादी जुबैदा ने कहा, ए मेरी माँ, तुझे मेरी जान की कसम, जाकर उसका परों वाला लिबास ले आ ताकि हम उसका तमाशा देखें, फिर तू उसे ले जाइयो। बुढ़िया बोली, ए मेरी आका, ये झूठी है, कभी तूने किसी औरत के पास परों का लिबास भी देखा है? वो तो महज चिड़ियों की पोशाक है। लड़की ने शहजादी जुबैदा से कहा, है मेरी आका, तेरी जान की कसम, मेरा परों का लिबास है और वो घर की एक कोठरी में दफन है। शहजादी जुबैदा ने अपने गले से हीरों का एक हार उतारा जो कसरा और केसर के खजानों के बराबर होगा और कहने लगी, ए मेरी वालदा, ये हार ले। यह कहकर उसने उसे वो हार दे दिया और कहा कि मेरी जान की कसम, जाकर वो लिबास ले आ, जब हम उसे देख लेंगे तो फिर ले जाइयो। बुढ़िया ने कसम खाई कि मैंने वो लिबास कभी नहीं देखा है और न मैं ये जानती हूँ कि वो कहाँ है। शहजादी जुबैदा ने उसे डांटा और उससे कुंजियां ले ली और मसरूर को आवाज दी। वो हाजिर हुआ तो जुबैदा ने कहा, ये कुंजियां ले और उसके घर जाकर उसे खोल और उस कोठरी में दाखिल हो जिसका दरवाजा इस तरह का है, उसके बीच में एक संदूक है, उसे तोड़कर उसमें जो परों का लिबास है उसे मेरे पास ले आ। और वो शहजादी जुबैदा के हाथ से कुंजियां लेकर चल दिया। हसन की माँ भी रोती पीटती उसके साथ होली। वो पश्चिमा थी कि लड़की का कहना मानकर उसे हमाम क्यों ले गई। लड़की का हमाम जाने का इरादा महज एक फरेब था। इतने में घर आ गया। बुढ़िया और मसरूर अंदर गए।
कोठरी का दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल हुए। मसरूर ने संदूक खोलकर उसमें से परों का लिबास निकाला और उसे एक रुमाल में लपेटकर शहजादी जुबैदा के पास ले आया। जुबैदा ने उसे मुलाहिजा किया और उसकी कारीगरी पर ताजुब करने लगी। फिर उसे लड़की को देकर कहा कि यही तेरा परों का लिबास है। वो बोली, ए मेरी आका हाँ, और खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उलट पुलट कर देखा कि वो पहले की तरह मुकम्मल है और उसका एक पर भी जाया नहीं हुआ। अपने हर तरह से इत्मीनान करके वो शहजादी जुबैदा के पास से उठी और लिबास को लेकर खोला और बच्चों को गोद में लेकर उसे पहन लिया। खुदा की कुदरत से वो चिड़िया बन गई। जुबैदा और तमाम हाज़रीन ताज्जुब करने लगे। सबको अचंभे था। अब लड़की मटकने, चलने और नाचने कूदने लगी। लोग उसे टिकटकी बांधकर देखते और ताज्जुब करते। लड़की ने पूछा, ए मेरी आका, क्यों ये खूबसूरत है ना? हाज़रीन ने कहा, ए हसीनों की सरदार, बहुत खूबसूरत। लड़की बोली, ए मेरी आका, जो कुछ मैं करूंगी वो इससे भी ज्यादा नया करिश्मा होगा। ये कहकर उसने अपने पर खोले और अपने बेटों को लेकर उड़ी और उड़कर गुंबद पर बैठ गई। लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और कहते, खुदा की कसम, ये अजीब व गरीब कारीगरी है, ऐसी बात हमने आज तक नहीं देखी। अब लड़की चाहती थी कि उड़कर अपने वतन चली जाए, लेकिन उसे हसन की याद आ गई। वो रोने लगी। शहजादी जुबैदा ने कहा, हसीनों की सरताज, उतर कर हमारे पास आ ताकि हम तेरा हुस्न देखकर खुश हों। पाके वो जात जिसने तुझे फसाद और हुस्न दोनों अता किए। लड़की ने जवाब दिया कि कहीं कोई जाकर भी आया है। उसके बाद उसने हसन की माँ से कहा, जो बेचारी गमगीन खड़ी थी, कि ए मेरी आका, ए हसन की माँ, वल्लाह तुझ पर मुझे तरस आता है। जब तेरा बेटा लौट कर आए, जुदाई के दिन उस पर गठन गुजरे, उसे मुझसे मिलने की तमन्ना हो, मोहब्बत और इश्क की हवा के झोंके चलने लगे, तो वो मेरे पास जज़ायर वाक में आ जाए। ये कहकर वो माँ अपने बच्चों के उड़ी और अपने वतन की तरफ चल दी। ये देखकर हसन की माँ रोने और अपना मुंह पीटने लगी और इतनी आहो बका की कि उसे गश आ गया। होश आया तो शहजादी जुबैदा ने कहा, ए मेरी परदेसन, मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। अगर मुझे पहले से तू बता देती तो मैं जिद न करती। मैं ये नहीं जानती थी कि वो उड़ने वाले जिनों में से है। अगर मुझे ये हाल मालूम होता तो मैं उसे कभी वो लिबास न पहनने देती और न उसे बच्चों को ले जाने देती। बहरहाल ए मेरी आका, मुझे माफ कर दे। बुढ़िया के लिए उसके सिवा और चारा ही क्या था। उसने कहा कि मैं तुझे माफ करती हूँ, और ये कहकर वो महल से निकली। यहीं पर इस कहानी को बंद करते हैं और इसका तीसरा पार्ट बनाते हैं। मिलते हैं तीसरे पार्ट के साथ, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिला करे। मिलते हैं बकाया कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।